Hello students, how are you all? I hope you are fine. So this is Dr. Minakshi, your chemistry teacher. Today we are going to study very important topic of electrochemistry, which is electrochemical series. So students, you have to learn this electrochemical series because this series is very important to identify the reactivity of metal, how a particular metal will react. And I have told you earlier that I will give you uh, I will let you know that how a particular electron act as an anode and it can act as a cathode, right? So this series is definitely going to help you to identify which electrode is used to which electrode is used as an anode and which electrode is used as a cathode. So let's move to the topic. So students, just keep in mind that this electrochemical series this electrochemical series shows the electrode potential of different metal. It shows the electrode potential of different metal. Now keep in mind that this electrode potential has been obtained when we connect this particular half cell with the SHE. Okay, so we can say that these all are standard potentials. These all are standard potential. Whatever potential will be given over here, all the potential will be standard. And over here we will take the reductive, or we can say the standard electrode reduction potential. Okay, I am not talking about oxidation potential. Here clearly we are going to take standard electrode reduction potential. Okay, so we are just talking about reduction potential in this topic. Okay, and how we measure that reduction potential? By connecting this particular half cell, by connecting the electrode of this particular metal with SHE. Okay, so we will get a certain electrode potential. That electrode potential will be written over here. Okay, so students, you have to remember this series because by measuring the electrode potential of this particular half cell with the help of SHE, we received a certain value. On the basis of that value, we arrange this particular element in this particular order. ठीक है, तो बच्चों मैं फिर से क्लियर कर देती हूँ कि इसके अंदर हम सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे और ये रिडक्शन पोटेंशियल हमने मेजर कैसे किया। ये रिडक्शन पोटेंशियल हमने इन पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड्स की जो हाफ सेल है उनको SHE के साथ में कनेक्ट किया, और जब हमने उन SHE के साथ में कनेक्ट किया तो हमें सर्टन पोटेंशियल मिलेगा। कुछ पोटेंशियल मिलेगा। कैसे मेजर करते हैं हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, राइट। तो हमें जो वो पोटेंशियल मिलेगा, इस पोटेंशियल को हम बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। सो दीज द रिडक्शन पोटेंशियल जो मैंने यहाँ ग्रीन पेन से लिखे हैं, ये कौन से पोटेंशियल है? रिडक्शन पोटेंशियल। कौन से केस में? स्टैंडर्ड केस में, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। फिर जब हमें सब पोटेंशियल मिल जाएगा तो हमने क्या किया, पोटेंशियल को मैक्सिमम माइनस से लेके प्लस के ऑर्डर में, इन शॉर्ट मिनिमम से लेके मैक्सिमम वोल्ट तक अरेंज किया। और जब हम अरेंज करते हैं तो हमें एक पर्टिकुलर सीरीज मिलती है, जिस सीरीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ओके, सो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वी गेट बाय अरेंजिंग द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। और ये कौन सा पोटेंशियल है? ये रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको ये इस तरीके से याद करना है। ये सारा रिडक्शन पोटेंशियल की हम बात कर रहे हैं, कैसे मेजर किया? SHE की हेल्प से मेजर किया, तो हमें ये सर्टन सीरीज मिलेगी। तो बच्चों देख लीजिए, फर्स्ट हमें क्या है? लिथियम, फिर पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, निकल, टिन, लेड, देन हाइड्रोजन, कॉपर, एंड देन I2 silver, mercury, bromine, chlorine, gold, and fluorine is there. So this is the order of electrochemical सीरीज, ठीक है बच्चों। मैंने यहाँ पे कुछ ही पोटेंशियल लिखे हैं, जैसे कि यहाँ पे -3 है, यहाँ -2 है। अरे जैसे से हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे माइनस की वैल्यू कम होती जाएगी और फाइनली माइनस की वैल्यू सी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फाइनली 0। हम जानते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल 0 होता है। और यहाँ से जैसे जैसे हम और नीचे जाते जाते हैं, एज वी मूव डाउन टू दिस पर्टिकुलर सीरीज, प्लस में पोटेंशियल बनना शुरू हो जाएगा।
we will get potential in the plus form, right? So students, मैंने यहाँ पे कुछ ही लिखे हैं starting to और ending to in order to know that जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे ये नेगेटिव की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। और फाइनली हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, 0। और फिर हम जब 0 से और नीचे जाएंगे तो हमें पॉजिटिव की वैल्यू मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज होता जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव का पोटेंशियल 1.5 है, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, प्लस 2.8, मतलब यहाँ इसके कंपेयर में नीचे और ज़्यादा है। तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो माइनस में कम होता जाएगा फाइनली 0, और 0 के बाद जैसे और हम नीचे जाएंगे तो वो प्लस की वैल्यू, प्लस में पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो ये सीरीज़ तो आपको याद करनी है, और ये सीरीज़ कैसे याद करनी है इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। अभी हम इस वीडियो का एप्लीकेशन पार्ट पढ़ रहे हैं कि इस सीरीज़ का एप्लीकेशन क्या होगा। ठीक है, तो बच्चों देखो मैंने ये तो बता ही दिया है कि आपको नीचे जाएंगे जैसे जैसे नेगेटिव में डिक्रीज होता जाएगा, 0 होगा, फिर प्लस में बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या ध्यान रखना है बच्चों, एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान से देखिएगा कि जब भी अगर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू माइनस में आ रही है, जब भी वैल्यू माइनस में आ रही है ना, इसका मतलब वो टेंडेंसी करता है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। ठीक है, और अगर आपको ई की वैल्यू प्लस में मिल रही है, इसका मतलब वो गेन करने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, जब भी अगर ई की वैल्यू माइनस में आ रही है इसका मतलब वो लूज करने की टेंडेंसी रखता है, इट हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, राइट। और अगर प्लस में वैल्यू आती है ई की, इसका मतलब वो टेंडेंसी गेन करने की रखता है। तो बच्चों देखो इससे बहुत ही सिंपल है, आप इजीली बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे वैल्यू क्या है, माइनस की। ठीक है, माइनस की, जैसे जैसे नीचे जाएंगे यहाँ तक माइनस डिक्रीज होता जाएगा, पर है तो माइनस ही। तो जब भी माइनस की वैल्यू होगी इसका मतलब वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अगर माइनस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, तो ये कौन सी एजेंट की तरह काम करेगा, जस्ट ऑपोजिट लिख दीजिए, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि लिथियम का ऑक्सीडेशन सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, पोटेशियम का थोड़ा कम होगा, बेरियम का और कम, कैल्शियम का और कम, क्योंकि जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव जो साइन है वो कम होता जा रहा है, नेगेटिव की वैल्यू कम होती जा रही है, माइनस की वैल्यू कम होती जा रही है। और जैसे जैसे माइनस की वैल्यू कम होती जाएगी, ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी भी कम होती जाएगी। हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, और इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करते हैं। तो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, लिथियम। अगर मैं पोटेशियम की बात करूं तो ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, पर लिथियम के कंपेयर में इसका रिड्यूसिंग एजेंट की जो टेंडेंसी है वो थोड़ी कम है कंपैरिजन में। ठीक है, समझ में आ गया। तो बच्चों मैंने आपको क्या कहा, जब प्लस में होता है तो गेन करने की टेंडेंसी रखता है। इसका मतलब जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे रिडक्शन की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो रिडक्शन की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये किसकी तरह काम कर रहा है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, इट एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम ये क्वेश्चन पुटअप होता है हमारे पास में कि सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट सबसे अच्छा होगा जिसमें ऑक्सीडेशन सबसे अच्छा होता है। सबसे ऑक्सीडेशन किस में होता है, लिथियम में, क्योंकि इसका जो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो माइनस में है। तो सबसे अच्छा जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो कौन है, लिथियम है। और सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसमें सबसे अच्छा रिडक्शन हो, मतलब जिसके पास सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो, पॉजिटिव की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो ये सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। समझ में आ रहा है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि आपके पास में सिल्वर है और मरकरी है, तो इसमें सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, तो नीचे मरकरी पे आप फोकस कीजिए, क्योंकि जैसे नीचे जा रहे पॉजिटिव बढ़ता जा रहा है, तो सिल्वर के कंपेयर में मरकरी में ज़्यादा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। सो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये ज़्यादा अच्छा होगा, रिडक्शन इसमें ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे रिड्यूसिंग एजेंट की जो टेंडेंसी वो कम होती जाएगी, और फाइनली ये एकदम न्यूट्रल स्टेट में आ गया। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन भी कर सकता है, रिडक्शन भी कर सकता है, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे गेन करने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। इट मीन्स वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करना शुरू
कर देता है। तो आपको सिर्फ कंपैरिजन करना है, ठीक है। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया है कि Mg है और Cr है, इसके अंदर आपसे पूछते हैं अगर कि अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, तो हम जानते हैं जिसका ज़्यादा माइनस Mg में ज़्यादा होगा तो ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये थोड़ा उसके कंपेयर में कम रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो बच्चों ये है अबाउट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो आपको ये भी समझ में आ गया जिसका नेगेटिव चार्ज है वो लूज करता है इलेक्ट्रॉन, और जिसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल आ रहा है वो गेन करता है, ठीक है। अब अगर आप मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, गैल्वेनिक सेल की तरफ हम जाते हैं वापस। अगर आपको याद हो बच्चों, गैल्वेनिक सेल में हमने क्या लिया था, एक तो जिंक लिया था और क्या लिया था, कॉपर। तो देखो जिंक का किस में होता है, नेगेटिव में होता है रिडक्शन पोटेंशियल, और कॉपर का किस में होता है, पॉजिटिव में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आप जानते हैं जब नेगेटिव होता है तो वो टेंडेंसी लूज करने की रखता है, इसका मतलब ये किसकी तरह काम करेगा, एनोड की तरह। और ये इसका पॉजिटिव मतलब गेन करने की टेंडेंसी रखता है, तो ये किसकी तरह काम करेगा, कैथोड की तरह। तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आप इजीली बता सकते हो, आपको जब भी कोई दो एलिमेंट्स दे रखे हैं तो जो एलिमेंट ऊपर आता है, जो एलिमेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर आता है वो एनोड की तरह काम करेगा, और जो एलिमेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे की तरफ आता है वो कैथोड की तरफ काम करेगा। आपको सिर्फ ये पर्टिकुलर रूल याद रखना है कि अगर ई रिडक्शन का नेगेटिव है तो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, अगर ई रिडक्शन पॉजिटिव में है तो गेन करेगा। इजी समझ में आ गया। चलो अब हम इसमें कुछ और पॉइंट्स पढ़ते हैं। देखो बच्चों, आपने अगर 10th क्लास में थोड़ा सा पढ़ा होगा तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर आपको याद होगी, ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है इसमें हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में बता सकते हैं। जो मेटल ऊपर हैं वो बहुत एक्टिव हैं, ठीक है, और जैसे नीचे जा रहे हैं उनकी एक्टिविटी कम होती जा रही है। तो ऊपर वाले एक्टिव है, स्ट्रॉन्ग है, रिएक्टिव है, तो वो नीचे वालों को इजीली डिस्प्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलती हूँ कि जिंक है और ये कॉपर सल्फेट के साथ में रिएक्ट कर रहा है, तो बताइए प्रोडक्ट क्या होगा, क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। तो देख लीजिए जिंक आ रहा है यहाँ पे और कॉपर आ रहा है यहाँ पे, तो जिंक ऊपर है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इजीली कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और कॉपर को बाहर निकाल देगा। तो क्या बनेगा, जिंक, कॉपर की जगह क्या आ जाएगा, जिंक, क्योंकि उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और बाहर क्या निकल जाएगा, कॉपर, ठीक है। अगर जस्ट इसकी मैं ऑपोजिट इक्वेशन लिख दूं, जस्ट इसकी मैं ऑपोजिट इक्वेशन कर देती हूँ। अगर मैंने बोला है आपको सपोज कि यहाँ पे है कॉपर और यहाँ पे है जिंक, तो क्या अब ये रिएक्शन पॉसिबल है। तो आप देखेंगे कॉपर जो है वो नीचे आ रहा है, तो ये कॉपर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इसको डिस्प्लेस कर सके, कॉपर में इतनी टेंडेंसी नहीं है, ये वीक है, ये इसको इतना स्ट्रांगली डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा। ये टॉपिक आप ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ चुके हैं बच्चों, ठीक है। तो आप इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ये भी बता सकते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ठीक है। उसके बाद आप ये भी बता सकते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रोड एनोड की तरह काम करेगा और कौन सा इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह काम करेगा, जस्ट आपको कंपेयर करना है, ठीक है। उसके बाद में आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में भी बता सकते हैं, और आप ये भी बता सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद बच्चों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि कौन सा मेटल जो है वो एसिड के साथ में रिएक्ट करके H2 गैस रिलीज करेगा। तो बच्चों कीप इन माइंड, जो भी मेटल हाइड्रोजन से ऊपर हैं, जो भी मेटल हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो एसिड के साथ में रिएक्ट करके H2 गैस रिलीज करते हैं। जो भी मेटल हाइड्रोजन से ऊपर हैं, मतलब मैं लिथियम से लेके लेड तक की बात कर रही हूँ, जो भी एलिमेंट्स, जो भी मेटल हाइड्रोजन से ऊपर है, मतलब लिथियम से लेके हम लेड तक की बात कर रहे हैं, वो जब भी एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं तो H2 गैस रिलीज करते हैं। और वहीं जब हम नीचे वालों की बात करते हैं तो ये लेस रिएक्टिव होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, तो ये H2 गैस रिलीज नहीं करते जब वो एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं। सो बच्चों बहुत सिंपल तरीके से आप इस सीरीज़ को याद कर सकते हैं, उसकी ट्रिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगी। अभी के लिए आप ये समझिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, कौन ऑक्सीडेशन करता है, कौन रिडक्शन करता है, अगर रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में है तो क्या होगा, प्लस में है तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब पॉसिबल और कब पॉसिबल
नहीं है। ये सब आपको पता होना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट की पॉइंट है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है वो रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे है। मतलब हम ये मान के चलते हैं कि मेटल पे पॉजिटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करके न्यूट्रल मेटल बना रहा है। मतलब हम इसको रिडक्शन पोटेंशियल के वे में कंपेयर करते हैं। आप इस सीरीज़ को ऑक्सीडेशन के फॉर्म में नहीं ले रहे हैं, हम इसको रिडक्शन पोटेंशियल ले रहे हैं, वो भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगी। सो फॉर नाउ दिस इज इट। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड जस्ट रिवाइज द टॉपिक।